if in case you are not able to clear for this particular IITs and IITs, you are able to have this as a plan B. And साथ ही if after end of this video if some of the students find कि हाँ इसी को ही टारगेट करते तो it could be more like very well, मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगा, right? So anyways is beneficial to you guys. I am talking about the IISERs institutes जो हैं into India, there are in total 7, जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च. सो दिस IISER institutes offers a dual degree course, that is BS and MS. That is दोनों का मिला के 5 years का कोर्स है ये. That is bachelor's in science and master's in science, दोनों into dual form they are offering into 5 years of course. So आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे about how to get admission into this, what are the benefits and what shall be your after plan. ठीक है, अगर एडमिशन लेना है तो कौन सी टेस्ट देनी है, वो टेस्ट कब आएगी इस साल, एवरीथिंग इनटू डिटेल अबाउट IISER विल बी टॉकिंग अबाउट. इंस्टीट्यूट्स की भी बात करेंगे, कौन से लोकेशंस पे हैं and how feasible is for you guys to take admission into that. Okay, so let's begin with the video. IISER, okay, the complete information. I am sure looking upon to this video at the end you shall be really clear with your mind कि हाँ इसको मैं ऑप्शन में रख सकता हूँ या I may directly target this only. Okay, so IISER aptitude test is the test that is conducted every year to get admission into IISER, the famous of the 7 IISERs in India. And इस aptitude का syllabus भी देख लेंगे. Okay, into detail. IISER is Indian Institute of Science Education and Research. Fine. So here is the importance. Is the premier institute for research and science education. Is the gateway for students pursue MS and BS degree as a dual degree program. It is world class faculty, infrastructure, research opportunities. Infrastructure are superb. Okay, even the faculties over there are really good. Offer significant career opportunities into research, industry and academia. Now into this, I must clear as very this movement. This institute is more inclined towards research. ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ research ही होता है, but हाँ, inclination to research is more. The reason why this institutes were organized apart from IITs, NITs तो थी इंडिया के लिए very recognized and famous, but still इन्होंने ये निकाला क्यों? Government of India thought कि हाँ कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ इंजीनियर्स हमें ऐसे भी चाहिए जो पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हो, एकेडमिक्स और रिसर्च की तरफ इंक्लाइंड हो. ऐसा नहीं कि आप IIT से ग्रेजुएट होके BTech करके अच्छी खासी जॉब लेके दैट्स इट, यू आर सेट विथ योर करियर, ओके, इनटू इंडस्ट्री. बट एकेडमिक साइड आने वाले बच्चे बहुत कम है, रिसर्च साइड आने वाले बच्चे बहुत कम है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली वांटेड द स्टूडेंट्स टू गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च, ताकि और रिसर्च इंडिया में बढ़े और एकेडमिक मतलब कि प्रोफेसर्स जो हो वो खुद ही अच्छे खासे पढ़े हुए इंजीनियर्स हो जो टीचिंग कर रहे हो बाद में, राइट? सो दैट इंक्लिनेशन की वजह से दिस इंस्टीट्यूट्स वर ऑर्गेनाइज. हालांकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो कम फॉर रिक्रूटमेंट, ये भी है. एंड साथ ही अगर आपको बाहर से PhD करना है तो अगर आपने अपना ड्यूअल डिग्री कोर्स यहाँ से किया है तो बाहर PhD के ऑप्शंस आपके बढ़ जाएंगे. यू विल बी गेटिंग मोर प्रेफरेंस फॉर PhD आउटसाइड इंडिया ऑल्सो. ओके, तो ये चीज तो है ही है. अभी यहाँ पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होती है IISER की, जिसे हम IIT टेस्ट कहते हैं, IIT, ओके, IISER की एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज द फुल फॉर्म. ओके, सो नाउ इनटू दिस आर द सिलेबस. You will be asked from 11th and 12th grade का physics, chemistry, maths and biology also. So PCM के बच्चों को हल्का सा biology of this much topics भी पढ़ना पड़ेगा and PCB के बच्चों को this much of maths भी पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने दोनों ही लिया है, वैसे बहुत कम बच्चे होंगे, बट हाँ जिन्होंने लिया है उनको बेनिफिट है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इट्स ऑफ आई विल जस्ट टेल यू द मार्क्स या इज थ्रू दिस. ओके, दिस इज द IISER एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में. ओके, इसके थ्रू आप जा सकते हो. जी एडवांस के स्कोर्स के थ्रू भी इसमें एडमिशन ले सकते हो. एंड देयर इज अ योजना KVPY, उसके थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो. फाइन, दिस इज मेरिट बेस्ड सीट लोकेशन ऑफ कोर्स एंड दिस आर द लोकेशंस. और भी सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आफ्टर द लोकेशन डिस्कशन. ओके, सो नाउ इट्स देयर इनटू पुणे, महाराष्ट्र, इवन इनटू कोलकाता we have it in Mohali, Bhopal, we have Thiruvananthapuram, Kerala, Tirupati, Andhra Pradesh and Berhampur, that is West Bengal, may be located here. Okay, all of this.
तो इट्स वेरी मच देयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल लोकेशंस ऑफ इंडिया. एंड या इसमें जो लोग भी पढ़ते हैं दे गेट टॉप प्लेसमेंट्स. दे गेट इनटू पीएचडी एट एमआईटी, हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज में पीएचडी के लिए भी गए हैं लोग. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी आती है फॉर इंडस्ट्री प्लेसमेंट. एंड पैकेज ऑफरिंग गोज फ्रॉम द रेंज ऑफ 35 lakhs to 40 lakhs. अच्छा खासा पैकेज आपको इसमें मिल पाता है. ओके, सो इवन द फी स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू डिस्कस, ट्यूशन फी जो रहती है 1 लाख से लेके 1,20,000 तक पर ईयर, वेरीज एज पर द आइसर्स, अलग अलग लोकेशन के, पर इस रेंज में है. हॉस्टल मेस फी 30,000 to 50,000 पर ईयर, एस्टिमेटेड 1.5 से 2 लाख पर ईयर. ओके, बट जिसकी हम बात करते हैं हमेशा जब भी हम एडमिशन लेते हैं, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो एज अ पार्ट ऑफ फीस, उसका रिटर्न मिल पाता है या नहीं आपको आफ्टर द ग्रेजुएशन. तो वो आपको देखना है. अगर ये इन्वेस्ट करते हो आपको अच्छा खासा मिल रहा है, एट द एंड 35 लाख का भी पैकेज मिल रहा है, फुल टू वसूल कहलाएगा, राइट. इसके अलावा द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज यू गेट लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, जो कि उन्हीं के द्वारा होती है, दैट इज इंस्पायर स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपको 80,000 पर ईयर तो मिल ही जाता है. अच्छे खासे जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये तो मिल ही जाता है. साथ ही KVPY की फेलोशिप है. ओके, 5,000 to 7,000 पर मंथ फॉर एलिजिबल स्टूडेंट. कुछ क्राइटेरिया है उसके, वो भी मिल सकती है. SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप हो तो बिल्कुल ही उसकी भी स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको. एंड मैरिट का मीन बेसिस स्कॉलरशिप बाय आइसर भी ऑफर की जाती है. मतलब स्कॉलरशिप्स के आपके काफी ऑप्शंस रहेंगे आइसर. ओके, तो कहीं ना कहीं यू कैन गेट डिडक्शन इनटू फीस आल्सो. ये हो गया. अभी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि इसी साल 8 जून को शेड्यूल है. ओके, उसकी डेट आ चुकी है, 8 जून को आपकी शेड्यूल है. एंड एप्लीकेशन शेल बी ओपनिंग रियली सून. आई कन्वे टू यू ऑन द कम्युनिटी पोस्ट. बट हाँ, इसकी अगर आप जोरों शोरों से प्रिपरेशन अभी भी चालू कर दो, यू विल बी एबल टू स्कोर रियली गुड, बिकॉज द टोटल मार्क्स इज 240. अभी हर ही सब्जेक्ट्स में से 60 क्वेश्चंस आएंगे, राइट. करेक्ट आंसर को +4 मिलेगा, जो रॉन्ग आंसर है -1 मिलेगा. ओके, दिस इज द मार्किंग सिस्टम. दिस आर द लास्ट ईयर कट ऑफ्स. ओके, सो नाउ इनटू famous of the ICER you want to go, you need to score minimum of 210 to 220 out of 240. ओके, तो जो बंदा या तो बंदी इज फ्रॉम PCM तो उसको थोड़ा सा बायोलॉजी टफ रहेगा. बट अच्छे से प्रिपरेशन इतने टाइम में कर ही भी लोगे क्योंकि सिलेबस डिफाइंड है, इतना ही करना है बायोलॉजी का. तो अगर आप उतना कर लेते हो तो यू कैन इजीली क्रैक. एंड सिमिलरली गोज फॉर द PCB स्टूडेंट्स. मैथ्स का उतना सिलेबस कर लो, right, if you genuinely want to get into this. Okay, so this is something you can go. हाँ, cut off varies each year based on difficulty and number of applicants. ये previous का था. Okay, cut offs, this is it. So this is something about ICER I wanted to share with you guys. कहीं ना कहीं आप प्लान भी सोच रहे हो, this could work. Even directly the ones who are aiming on ICER, absolutely go for it. Career opportunity बहुत सही बनेगी. Okay, साथ ही इस तरीके के इंस्टीट्यूट से जाने का एक और फायदा मैं आपको दिखाना चाहूंगी is networking. You get into touch with professionals of that field, जो आपको कहीं ना कहीं इन योर करियर आगे जाके भी काम लगेंगे. साथ ही ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन जो कोई भी डिफिकल्टी में आप स्टक हो उसमें इजीली आप निकल पाओगे विद देयर गाइडेंस. ओके, ये सराउंडिंग होना विद अ वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बहुत कम लोगों को मिलता है. ओनली द लकी वंस गेट. ओके, तो ICER कुड बी द वन ऑफ द इंस्टीट्यूट यू कैन एम फॉर, जहाँ पे अच्छा खासा एक एनवायरमेंट मिल जाएगा, जहाँ पे सभी स्टडी ओरिएंटेड हो. ओके, कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड हो, जिससे you also grow in your career, right? So all the best to the ones you are applying. I'll be coming with more of such opportunities जो routine track से थोड़ी सी अलग हो. Okay, ताकि बच्चे into other directions भी सोच सके, right? All the best guys. See you soon in the next video on It's Me, Yami.